This you have a conference will chat now be window. recorded. You have a chat window for गो टू मीटिंग. अगर आप गो टू मीटिंग फोन से भी ज्वाइन कर रहे होंगे या आपके लैपटॉप से कहीं से भी ज्वाइन कर रहे होंगे तो उसको एक चैट विंडो है. व्हाट आई वांट यू गाइस टू यूज इज दैट चैट विंडो. मतलब अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन पूछा या अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर देना है तो यू कैन यूज दैट चैट विंडो. ओके. क्यों चैट विंडो यूज करना है? रीजन इज आपको हर एक सेशन के बाद ये वीडियो मिलेगा. ओके. अगर वीडियो में कहीं डिस्टरबेंस रहेगा तो इट इज नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो कि आप सुन रहे हो और बीच में कोई. सो ऑलवेज बेटर दैट वी शुड हैव वेरी क्लीन वीडियो. ओके. जहां पे यू कैन हियर ओनली द थिंग दैट यू वांट टू लर्न एंड आपको सारे क्वेश्चंस और आंसर्स भी दिखेंगे. ठीक है. तो my suggestion, you guys can ask any question on the chat window. That is perfectly fine and try to answer those questions. कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो मुझे चैट विंडो पे. ओके. I'll try to answer as many as possible. And same way you can answer also on the chat window. जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप चैट विंडो पे आंसर भी दे सकते हो. So that आपका वीडियो, what I said is, video will be very clear. ठीक. Is that make sense, everyone? Very good, Anubrita, Pranali. Others, make sense what I'm saying? सबको क्लियर है? वेरी गुड चेतन. परफेक्ट. समीर. गुड. और देखो इससे ना मुझे आप लोगों के नाम भी पता चलेंगे. सबसे बेस्ट मेरे लिए वो है. ओके. सबसे अच्छा मेरे लिए वो है कि आप लोगों के मुझे नाम पता चलेंगे. ओके. ओके. चलो देन दिस इज अ फर्स्ट रिक्वेस्ट. Now second is a question for all of you. Do you want me to teach in English completely or Hindi and English mix? It's up to you. आप लोगों को कैसे चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है. If you want me to teach in English directly, that is okay. If you want me to teach Hindi और English का mix, it is okay. वो आप लोग मुझे समझा सकते हैं. बताओ how it is. Mix, okay. Samiksha, Siddhi, very good. Chetan, Samir is saying in English, okay. Mix, okay. Mix. Okay, so Samir, you're not understanding Hindi? I'm just making sure, okay? No, Yeah, ये कोई. I'm comfortable with Hindi also. Sorry? Yes, I'm comfortable with Hindi also. Hindi also? Okay, 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 okay. Perfect, perfect. ठीक है. Perfect. Okay, chalo then. We'll go with majority. Okay? We'll go with majority then. And let's start. Let's start, guys. Okay, so I'll start with KnowledgeWare first. What is KnowledgeWare? How we started, where we are currently, and then we'll proceed with my profile, and then we'll start with our sessions and how we are going to progress into this automation journey. Okay. Now, KnowledgeWare is formed around in 2011-12. Okay. और तब से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 2700 प्लस लोगों को प्लेस किया है. सो नॉलेजवेयर अर्लियर इट वाज, आई मीन हम लोग
we were teaching only to the people who are who wanted to learn automation. सोचो तब 2012, 13, 10, 11 उसमें किसी को ऑटोमेशन ही नहीं पता था। ओके, और कोई ऑटोमेशन किसी को समझता ही नहीं था, तो उस समय हम लोग ऑटोमेशन उनको पढ़ाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, दैट इज एन एनजीओ। ओके, इन दैट वे। देन हम लोगों ने पुणे में वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्मॉल प्लेस इन करवेनगर। ओके, जहाँ पे वी स्टार्टेड अगेन एज आई मेंशन with a small wings. Okay, and day by day it grows, and then we focus only on automation. हमको और दूसरा, neither we want to teach any development tools or technologies, nor any DevOps wala. Okay, though we have the people and we can teach, but we focused only on automation, only on testing capabilities. अभी तक we placed almost 2700 plus people in multiple organizations. Some of those are in MNC, Cognizant, Accenture, Google. Google also, people get placed from our class. Then Siemens, TCS, Infosys, Sybase, okay, and many more. And same way for mid-scale and small-scale organizations also. We have conducted almost 2600 plus training, a different courses. Okay, as I mentioned, training is कि सिर्फ इतने बार सिखाया ऐसा नहीं, a different trainings we conducted. कभी corporate में training दिया हमने, okay, in that way, and different testing की courses, technologies. If you can go to YouTube, we will find you, and you can find there as around 5K plus YouTube subscribers to us. We have almost 10K LinkedIn followers, and we have almost 500 plus companies connect, जहाँ पे हम लोग मतलब अपने स्टूडेंट्स ही गए हैं, और वहां पे कोई ओपनिंग निकलता है तो दे विल शेयर विद अस एंड विल शेयर विद आवर स्टूडेंट्स। ओके, इन दैट वे वी हैव ऑलमोस्ट 2000 प्लस लाइव प्रैक्टिकल सेशंस, जिसको लाइव प्रोजेक्ट्स आप बोलते हो। ओके, आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे डायरेक्टली काम करोगे, सो ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको मिलेगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब है एक्चुअल ऑटोमेशन में कैसे काम होता है वो। And if you can search us on Google, you will find we have 4.8 ratings. और वो कोई भी खरीदी हुई रेटिंग नहीं है, because those are directly a direct rating from the students and who are our earlier candidates. Okay, ये उनके सबके ratings है. So this is all about a knowledge web. Any question before I move to the next slide? किसी को कोई question है? No. Very good, Manali. Good. तो आगे बढ़ू फिर मैं मनाली के भरोसे पे, बाकी लोग कि नहीं बढ़ना है, रुक जाओ, सबके आंसर आने चाहिए। हाँ, नो क्वेश्चन। भूषण, प्रणाली, वेरी गुड। समीर, मयूरी, चेतन, गुड। चलो आगे बढ़ सकते हैं फिर। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट मी। नेक्स्ट इज अबाउट मी। I am Mahesh, guys, and I have almost 17 plus years of experience in the field of test automation and working as a senior test architect earlier. Okay, now I worked on a multiple technologies. If you heard about BDD, you heard about API, web automation, mobile automation, load performance testing, security testing, all those things that I worked on. And the tools or technologies for similar things is Selenium, then Java, Playwright, Rest Assured, Appium, okay, then JMeter, LoadView, C Sharp, Python,
okay, and R language also. Those are the different technologies that I worked on. अभी ये पढ़ाने का आइडिया आया कहाँ से? सो व्हेन आई वाज इन R&D, ओके, मैंने 5 साल R&D में काम किया है एडीपी में. आई वाज वर्किंग विद गूगल. सो व्हेन सेलेनियम स्टार्टेड बिल्डिंग, सेलेनियम गूगल ने ही बनाया है, तो उस समय आई वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, एंड जहाँ से मुझे सीखने को मिला सेलेनियम. देन वी थॉट कि अरे सेलेनियम तो कोई यूसेज ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं करता है, बिकॉज इट्स अ फ्री, लोग यूज नहीं करना चाहते. रीजन है सिक्योरिटी एंड ऑल कंसर्न्स. So that's why I thought, why not? We can take that opportunity and we can share our knowledge. In that way, it started. Okay. Now, I have one patent on my name, which is for protocol automation. Protocol. आपने लैपटॉप का TCP/IP प्रोटोकॉल सुना होगा सबने. सेम वे, वैसे ही आपके एसी मशीन्स, दैट मीन्स योर टीवी, वॉशिंग मशीन या अदर कोई भी डिवाइसेस, embedded devices, those are communicate over a backnet protocol. तो मैंने वो प्रोटोकॉल ऑटोमेट किया था, ओके, एंड विच इज नॉट अर्लियर डन बाय एनीवन. सिमिलर वे मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है, सेकंड पेटेंट, दैट इज अ framework as a patented framework, one framework which serves all type of automation testing, that is your web automation, mobile, desktop, API and everything. Okay, and don't worry, the same framework structure we are going to take in your framework design and development. जब हम लोग फ्रेमवर्क बनाएंगे तो हम लोग वही फ्रेमवर्क बनाएंगे, मैं आपको वही फ्रेमवर्क सिखाऊंगा, so that you can learn that how exactly the framework is built. यहाँ तक क्लियर है सबको? Everyone, any question? Okay, perfect, 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 good, good. Then I I like a coding a lot. ये मेरी हॉबी अगर पूछोगे तो मुझे कोडिंग बहुत अच्छा लगता है. मुझे लोगों को मेंटरिंग करना बहुत अच्छा लगता है. ओके, और I wanted to walk on a beach, on a long beach, okay, alone. That is some of my hobbies. Okay, मैं जाता भी हूँ कहीं पे तो I wake up in the morning 4:30 4 और मैं बीच पे चला जाता हूँ. अगर मैं कहीं कोई कोस्टल एरिया में गया वैकेशन के लिए, and then I spend almost my 2 hours on the beach. That is my hobbies. Okay. Now, till now, I said I teach 7,500 plus people. Okay. Till now, I teach 7,500 plus people. और उनमें से कुछ लोगों ने दूसरों को भी पढ़ाना शुरू किया है, विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल, वेरी हैप्पी दैट वो लोग भी लोगों को हेल्प करते हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं. ओके. नाउ फ्रॉम my education background, I did my B in computers technology. Okay, and later I did a master MBA in international business and IT. Okay, आप लोग बोल रहे होंगे क्या बेवकूफ है सर, और 3 इडियट जैसे मास्टर्स किया ही क्यों, इंजीनियरिंग करी थी तो, राइट? बट दैट्स ट्रू. बट बिलीव मी दैट MBA हेल्प्स मी अ लॉट. ओके, दैट MBA हेल्प्स मी अ लॉट. नाउ फ्रॉम माय पर्सनल, I am basically from a small town Wardha near Nagpur, if you heard it. Okay, किसी ने सुना है वर्धा? Anyone? नागपुर के पास Yes, है. Oh, okay, yes. okay, okay. So perfect, perfect. So I'm basically from that small town. Okay. Or now I have 2 kids. One who is 9 year old is my son, and my daughter, she is 4.5 year old. Okay. And of course I have one wife. समझ रहे होंगे तुम लोग जो जो मैरिड है वाइफ बोलने के बाद.
right? Mostly boys. So, okay. So, my wife, she's also working in an IT. She's also in automation testing. और चल रहा है हमारा लाइफ. Okay. So that is all about myself, guys. Any question till this point? Anyone? I have one question myself. Hello. Please, 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 Yeah. please. Yeah. So you develop one framework that working in a web-based and window-based, right? No, that work on web-based, Windows-based, API, then आपका परफॉर्मेंस लोड टेस्टिंग भी उसी में होता है, मोबाइल ऑटोमेशन भी उसी में होता है. All, that's why I mentioned all type of testing is automated within the same framework. Okay. That's one thing I need to discuss. Okay. Okay. Thank you. Any other question, guys? Anyone? तो मुझे क्वेश्चन है, हम लोग कौन से फ्रेमवर्क पे वर्क करेंगे? आप लोग कॉम्प्लेक्स डिजाइन फ्रेमवर्क यानी आर्किटेक्चर पे काम करोगे जो मल्टीपल टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑटोमेट करेगा. कॉम्प्लेक्स में इंटरनली पेज ऑब्जेक्ट मॉडल आता है, बीडीडी आता है, आपका डेटा ड्रिवन आता है, कीवर्ड ड्रिवन आता है इंटरनली. सो दीज आर ऑल द टाइप ऑफ टेस्ट फ्रेमवर्क दैट वी आर गोइंग टू कवर. मल्टीपल मतलब मैं एक नहीं बोल सकता हूँ, ये सारे उसके अंदर आएंगे. एनी अदर? नो? मयूर इज सेइंग नो. चलो. ओके. So who all are married? जो हंस रहे थे जब मैंने बोला ऑफ कोर्स वन वाइफ. ऑल आर मैरिड? सब लोग? कौन फ्रेशर है आप लोगों में? आप कितने भी बड़े बन जाओ, घर में बॉस कोई और ही होता है, याद रखना. बॉयज, ये बॉयज के लिए इनपुट है मेरे. ओके. गर्ल्स नोज दे आर अ बॉस. याद रखना. डोंट आर्ग्यू. चलो फिर, नो क्वेश्चन. कैन वी मूव एवरीवन गाइस? आप लोगों को वर्धा पता है? आई एम वेरी सरप्राइज, सीरियसली. इट्स अ स्मॉल टाउन बट आप लोगों को पता है. आई एम हैप्पी टू हियर दैट. Yeah, I'm also from Amravati. Oh, you are from Amravati? I came yesterday from Amravati. Okay. Yesterday night. So I am from Washim. You're from? Washim. 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 Okay, Washim. Yeah, yeah, yeah. Washim is also nearby. Yes. Yes, I saw on. कौन सा रोड है वो अपना जो नया बना है? समृद्धि हाईवे. Yes. Good, good. Very good. चलो then. Can we move ahead? Everyone? And now, अभी हम लोग सब आंसर कहाँ देंगे? चैट विंडो पे. ओके? This is for all of you. Now I'm going to start something which I want to show you. चलो, दिख रहा है सबको? तो what I wanted to tell you is this is our exact way how we are going to proceed. Okay, this is our exact way how we are going to proceed. So सबसे पहले we are going to start with
जावा एंड सेलेनियम। मैं वो एक्सप्लेन करूंगा क्यों जावा सेलेनियम ले रहे हैं हम लोग एंड एवरीथिंग। ओके, देन सबसे पहले जावा, then we'll jump on selenium, then we'll jump on testng, then we'll jump on testng, and now the fill up। ये जो टर्न रहेगा, हर टर्न पे एक फिलअप रहेगा आपके, एवरी टर्न पे एक फिलअप है। यहाँ पे फिलअप में है आपके पास एपीआई टेस्टिंग, एपीआई ऑटोमेशन। ओके, तो ये जैसे हम यहाँ से यहाँ तक आए वेब ऑटोमेशन करते हुए, यहाँ पे आएगा आपका एपीआई ऑटोमेशन। ओके, मैंने यहाँ पे फॉर्म इसलिए लिखा है क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स डिजाइन पता ही नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्रेमवर्क लिखा है फॉर्म, जहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स डिजाइन फ्रेमवर्क, दैट मीन्स योर आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर। लेटर विल जंप टू गिटहब, देन जेनकिंस, एंड अगेन ऑन दिस टर्न आपका आएगा मैनुअल टेस्टिंग, बीडीडी वैलिडेशन, बीडीडी ऑटोमेशन। बीडीडी सुना है सबने? नहीं सुना, दैट इज ओके, विल टीच यू देयर, ओके, डोंट वरी। So BDD, manual testing, mobile manual testing, and everything that comes here. Then we'll jump on graphical reporting, auto deployment, okay? Then auto execution, जिसको हम CI and CD बोलते हैं, okay? And finally, I'll do an interview preparation, okay? और फिर हम लोग चेतन को ऐसे देखेंगे by shouting hooray. So this is the path, guys. This is the path which we are going to cover. Any question on this? Anyone? No? No question? Okay. Okay. Question है, you can ask me on chat window, that is okay. ठीक है? Please. Go ahead and ask. I'm waiting for 2 minutes. जब भी मैं पूछता हूँ उसके बाद मैं 2 मिनट रुकता ही हूँ क्वेश्चन पूछने के बाद. So you can type. आप लोगों को चिड़िया की आवाज ज्यादा आ रही है क्या? मैं विंडो बंद कर दूं? If you're finding that difficult, or it is okay for you? Birds की आवाज is okay? Yeah? Okay. Okay. Fine. ठीक है. चलो. If it's fine, then it's okay. So can I consider this as a no question and proceed further? In BDD, we use Cucumber framework. Yes, in BDD we use a Cucumber. और BDD से हम API भी करेंगे और वेब ऑटोमेशन भी करेंगे, ओके? दोनों. Sir, अच्छा. we have using only in Java language, right? Yes, we are using only one language, that is Java. Because most of the companies they want Python and JavaScript things. That's why I'm asking. Is it? So अभी उसका रीजन में जाने वाला था, why we selected Java. Okay. अभी आप अगर जाओगे naukri.com पे, ओके, और सर्च करोगे, और कैन यू म्यूट योरसेल्फ, सर्च करोगे ऑटोमेशन टेस्टिंग, मतलब जॉब्स इन ऑटोमेशन टेस्टिंग, so you will find almost 85% to 90% of job on Java plus any technology,
देन वो प्ले राइट रहे, सेलेनियम रहे, एपीआई ऑटोमेशन रहे, मोबाइल ऑटोमेशन रहे, जावा प्लस दैट। ओके, अभी पाइथन और जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट अगर मैं इसको कंसिडर करूं, ओके, तो इसमें बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी समझाता हूं। अगर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है तो चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन इज आल्सो हाई। रीजन है, अगर आप अभी के लिए देखोगे तो कंपनी और इंडस्ट्री हैज बिग स्किल गैप। इंडस्ट्री हैज अ बिग स्किल गैप, जहां पे लोगों को एक्चुअल क्या स्किल सीखना है, क्या स्किल करना है, ये पता ही नहीं, और उनको काम कैसे करना है ऑन जॉब ये पता ही नहीं है। Okay, so that is a skill gap I am talking about. So if we can talk about a Java, so Java is highly recommended in automation testing because उनको easily ये skill के लोग मिल जाते हैं। जब TypeScript Python के लोग ढूंढने जाते हैं उनको मिलते ही नहीं, और अगर मिल भी गए तो उनको प्रॉपर वर्क या ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसका हम बात कर रहे हैं वो नहीं होता है। Okay, because of that it has a big challenge. Make sense? अभी I'll tell you one small story guys. अभी देखो, I passed out in 2006-2007. अभी 2007 में I know आप सब तो छोटे छोटे बच्चे होंगे उस समय। So do you heard पिक रिसेशन आया था उस समय 2008, वो 6-7 से ही चालू हो गया था, बट तो पिक रिसेशन आया था। ओके, पिक रिसेशन में लोगों को जॉब ही नहीं लग रही, मुझे भी नहीं लगी। लोगों को क्या, मुझे भी नहीं लगी थी। तो आई नीड टू कम टू पुणे एंड स्टार्ट विद अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जहाँ पे मुझे 6 महीना फ्री में काम करना पड़ा। ओके, 6 महीना मैंने फ्री में काम किया और अपना जॉब स्टार्ट किया, एंड लेटर बेस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस फिर उन्होंने मुझे 6,000 रुपया पेमेंट दिया। ओके, 6,000 इज माई 72,000 इज माई पैकेज। 72,000 is my package for 1.5 year in Pune. Okay, उसी पे मुझे रहना था यहाँ पे। That's how my career started. But think later, after when I started into only testing, बहुत लोग बोल रहे थे हमको डेवलपमेंट में जाना है, सब लोग, कोई डेवलपमेंट में जा रहा है, कोई अलग अलग टेक्नोलॉजीज में जा रहा है, टेस्टिंग में जाने के लिए कोई रेडी नहीं। ओके, आई चूज एज अ टेस्टिंग एज अ करियर। ओके, जब टेस्टिंग में आया तो मुझे ऑटोमेशन टेस्टिंग का पता चला एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। सो उस समय कुछ लोग थे जो दे आर वेरी गुड इन इंग्लिश एंड एवरीथिंग। अभी मैं तो छोटे टाउन से आया था, मुझे इंग्लिश नहीं बात करते आएगा, कुछ नहीं। सो दे गॉट प्लेस्ड इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। नाउ बिलीव मी गाइज, देयर पैकेज इज नॉट इवन हाफ ऑफ माई पैकेज नाउ। ये करंट सिचुएशन में बता रहा हूँ आपको। ओके, जो हमारे कॉलेज के टॉपर थे, यूनिवर्सिटी टॉपर भी होते हैं ना हर एक कॉलेज में, वैसे मेरे भी कॉलेज में थे। सो दे आर नॉट इवन हाफ ऑफ माई पैकेज राइट नाउ। रीजन है टेक्नोलॉजी सिलेक्शन। ओके, और दूसरा है आप अपनी टेक्नोलॉजी, कुछ भी करो, मैनुअल टेस्टिंग करो, ऑटोमेशन टेस्टिंग करो, लेकिन आप उसमें आपका 200% दे देना। मैं ये बोल रहा हूँ, उसका रीजन है, अभी जितने मैंने ये दिखाया आपको पाथ में, जावा, सेलेनियम, हर एक सेशन के बाद आपको एक वीडियो आएगा जो अपना हमारा, जैसे आज का वीडियो है, आज का वीडियो आपको मिलेगा। उसके बाद उसके असाइनमेंट्स मिलेंगे, उसके बाद उसके नोट्स मिलेंगे, उसके बाद उसका कोड मिलेगा। कोड मतलब जो मैं अभी सोर्स कोड जो मैं कोडिंग करूंगा वो आपको एज इट इज मैं आपको शेयर भी करूंगा। ये सब आपको वॉक थ्रू करना है, इसीलिए हमने एक दिन का गैप दिया है 2 सेशन के बीच में। तो अल्टरनेट डे होने का रीजन ही ये है कि आपको वॉक थ्रू करना है और आपको
सेम ट्राई करके देखना है कोडिंग एंड ऑल। द रीजन बिहाइंड इज प्रैक्टिस। कोडिंग एक ऐसा चीज है, अगर आपको एक लैंग्वेज आ जाएगा तो बिलीव मी, ओनली सिंटैक्स और चेंजेस, only syntax will change, rest everything remains as it is। सिर्फ सिंटैक्स चेंज होगा, बाकी आपके कॉन्सेप्ट, उप्स कॉन्सेप्ट जो जावा के है वही सी शार्प के है। उप्स कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस होगा? डू यू थिंक? नो, कोई चेंजेस नहीं है उप्स कॉन्सेप्ट में। जैसे मैं यहाँ पे वेब ड्राइवर लिखता हूँ, वहां पे मुझे आई वेब ड्राइवर लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। सिंटैक्स, रेस्ट ऑब्जेक्ट वैसे ही बनाना है, ओके। इनहेरिटेंस वैसे ही करना है, एनकैप्सुलेशन वैसे ही करना है, एब्स्ट्रैक्शन वैसे ही करना है, स्टैटिक वैसे ही काम करता है, नॉन स्टैटिक वैसे ही काम करता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन? सो फोकस शुड बी ऑन वन लैंग्वेज एवरीवन, ठीक है। और यही कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों में, ओके। और हम लोग अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश करते हैं, एंड ड्यू टू दैट we will face a lot of challenges. Is it clear, guys? Clear, everyone? Make sense? Others? और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैं पढ़ाऊंगा, अभी आपको शुरू करूंगा, मैं कभी भी जल्दी में नहीं होता हूं। जब तक एवरी वन ऑफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आई विल नॉट प्रोसीड। ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। जब तक सबको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तब तक मैं आगे कभी नहीं बढ़ता हूं, ठीक है। एवरी वन ऑफ यू। क्लियर? ओके, फिर चले आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग। यस, ओके। तो अभी मैंने बोला था आपको जावा क्यों सिलेक्ट किया। दूसरी चीज, ये आज आप फर्स्ट डे है जहां पे पीपीटी देख रहे हो, इसके बाद आपको कोई पीपीटी देखने को नहीं मिलने वाला, ओके। इसके बाद आपको कोई भी पीपीटी देखने को नहीं मिलेगा। यू विल डायरेक्टली फाइंड, यू विल डायरेक्टली फाइंड अ कोड। हम लोग डायरेक्टली कोडिंग करना शुरू करेंगे, ओके। मुझे लगता है आज भी हम लोग डायरेक्टली कोडिंग ही शुरू करने वाले हैं इसके बाद, ओके। ओके, अच्छा, वन थिंग आई फॉरगॉट टू शो यू, जस्ट अ सेकंड। Just a second, guys. So, if you want, you can search me on LinkedIn with this profile name. Okay, my profile name is Automated Script. Okay, my profile name is Automated Script. आप LinkedIn पे मुझे सर्च कर सकते हो. You will find me. This is my forum. यहाँ पे this is about me. Okay, this is me. About my knowledge and everything I just mention it here. ओके। और हमारा जैसे लास्ट मीटअप हुआ था 24 में, बिजनेस टॉक हुए थे मेरे, सो दैट इज हाउ आई जस्ट मेंशन इट हियर। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, आई विल डायरेक्टली गेट एन ईमेल, ओके। यू कैन रीच आउट टू मी हियर ऑल्सो इफ यू वांट, फाइन। एंड you can search me with the name Automated Script on LinkedIn. You will find me there. चलो ना, लेट्स मूव।
As I mentioned, why we selected Java? Because Java is globally acceptable. Java is globally acceptable and Java के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है. हमको globally acceptable है उसका कोई लेन देन नहीं है. हमको जॉब चाहिए और हमको अच्छी जॉब चाहिए, हमको अच्छा कमाना है. इसीलिए हम जावा ले रहे हैं बिकॉज जावा में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है. सिंपल आंसर. मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग? Yes. So let's work on the practical scenarios rather than हवा में जो theoretical बात करते. नो, डोंट डू दैट. ओके, मुझे जॉब चाहिए, मुझे पता है जावा में मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा मुझे. मैंने जावा सिलेक्ट किया एंड जावा इज अ लैंग्वेज. अगर मैं ये एक लैंग्वेज सीख लूंगा या सीख लूंगी तो आई कैन वर्क ऑन मल्टीपल लैंग्वेजेस बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आर सेम. अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जावा आपको एकदम इजी तरीके से पढ़ा दूं. ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट आई डू. ओके, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप जावा अच्छे से करो और प्रैक्टिस करते रहो. ठीक है, चलो, विद दैट विल मूव अहेड. अभी जावा का एक हिस्ट्री है, स्मॉल हिस्ट्री, आई जस्ट एक्सप्लेन यू. जेम्स गॉसलिंग नाम का एक आदमी था जिसने जावा को बिल्ड किया. ओके, उसने सन माइक्रोसिस्टम को वो हैंड ओवर कर दिया था. सन माइक्रोसिस्टम ने जावा एज अ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया and then Java as a platform we all are started using since 1991. अभी जेम्स गॉसलिंग ने क्यों बनाया था? तो जेम्स गॉसलिंग एक डेवलपर था. जेम्स गॉसलिंग एक डेवलपर था. वो उसको अपना टीवी ऑन ऑफ करना है, वीसीआर ऑन ऑफ करना है, टोस्टर ऑन ऑफ करना है, ये सारी चीजें करने के लिए उसको उठना पड़ता था. तो उसने क्या किया? उसने कोडिंग किया और डायरेक्टली कमांड एंड कंट्रोल यहाँ से करता था बैठे बैठे. सो धीरे धीरे वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसने जब ये सेपरेट लैंग्वेज ही बना दी, सो दैट बिकम्स अ जावा. और वो लैंग्वेज नहीं थी तो वो प्लेटफॉर्म बन गया. ओके, दैट इज दैट पावरफुल. मेक सेंस यहाँ तक क्लियर? आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस क्योंकि इस पे कोई इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं करने वाला है. मेक सेंस? ओके, ठीक है. तो नाउ वाई जावा कोई बता सकता है आप में से? आपने सबने पढ़ा होगा 110%, आई एम गारंटी. वाई जावा सबने पढ़ा होगा. नो वन? नो वन? It is platform independent, that's why. वेरी गुड, वेरी गुड. यू कैन टाइप. ओके, सो जावा इज एन ओपन सोर्स. ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है?
यू कैन टाइप। हाँ गाइस, देखो आप ही का वीडियो है, आप ही को क्लीन मिलना चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सोर्स? Very good, Samir. That is platform independent. Very good. No, freely available. Very good, Samir. Very good answer. So what Samir is saying? Java is an open source. Java is an open source programming language. It's a freely available. So do you think there is a difference, okay, for everyone? फ्री एंड ओपन सोर्स का एक डिफरेंस है। नोटपैड आप सब फ्रीली यूज करते हो, नोटपैड सब लोग फ्रीली यूज करते हो, लेकिन अगर मैं बोलूं नोटपैड का कोड दिखाओ कैसे बनाए नोटपैड, तो यू आर एबल टू शो मी दैट? नो। वर्ड फाइल सब लोग फ्रीली यूज करते हो, लेकिन अगर मैं उसका सोर्स कोड, उसका कोड दिखाने के लिए पूछूं आपको, तो आप नहीं दिखा पाओगे। सो ओपन सोर्स का मतलब है you can use freely, but its source code is also available free to customize। उसका सोर्स कोड जो है वो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा फ्री टू कस्टमाइज। फ्री टू कस्टमाइज मतलब, कस्टमाइज मतलब आप जैसे चाहो वैसे इसको ढाल सकते हो, उसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन। ये है ओपन सोर्स और फ्रीवेयर का डिफरेंस। सो सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल फ्रीली टू यूज, बट उसका सोर्स कोड आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा टू डू द कस्टमाइजेशन। ओके, जावा का आपके पास सोर्स कोड भी अवेलेबल रहेगा फॉर कस्टमाइजेशन। फ्रीली तो आप यूज कर रहे हो, ओके, इसीलिए इंडस्ट्री में ये एक्सेप्टेबल ज्यादा है, ये उसका रीजन है। मेक सेंस एवरीवन? समझा फ्री और ओपन सोर्स का डिफरेंस? परफेक्ट। देन सेकंड था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अच्छा चलो, उससे भी पहले किसी को कोई एग्जांपल पता है ओपन सोर्स का? किसी को कोई एग्जांपल पता है ओपन सोर्स का? वेरी गुड समीर। सेलेनियम, गुड। व्हाट एल्स? अदर्स? सी लैंग्वेज, ओके। चलो, आप सब लोग यूज कर रहे हो, सबके पास एंड्रॉइड फोन है? सबके पास एंड्रॉइड फोन है? यस। सो एंड्रॉइड इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यू नो दैट। जब एंड्रॉइड आया था, एंड्रॉइड ने फ्री ओपन सोर्स कर दी थी अपनी ओएस, जिसके वजह से हर एक मोबाइल प्रोवाइडर ने अपने फोन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉन्च किया। पहले था विंडोज और एक था आईओएस। नोकिया वाज यूजिंग विंडोज। विंडोज खत्म हो गया क्योंकि कोई पेड लेके नए नए मोबाइल डेवलपमेंट नहीं हो सकते थे। जैसे ही गूगल ने एंड्रॉइड डाल के फ्री कर दिया, जितने मोबाइल प्रोवाइडर है सबने वो ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने अपने मोबाइल बनाए।
यस और नो? यस और नो? क्योंकि ओपन सोर्स था, फ्री में यूज कर सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो, आपके हिसाब से वो ओएस को आप ढाल सकते हो। और इसीलिए प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप आपको मिलते हैं जो आईओएस में नहीं मिलते, क्योंकि प्ले स्टोर पे ऐप बनाना, उनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन रहता है, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन एंड यू कैन बिल्ड इट। मेक सेंस? परफेक्ट। नाउ वी सेट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी जावा क्या बोलता है? मैंने आपको बोल दिया, मैंने अनुप्रिया को बोल दिया कि जाओ प्राइम नंबर का कोड लिखो, तो डू यू थिंक वो लिनक्स के मशीन के लिए एक कोड लिखेगी, विंडोज के लिए एक और सफारी के लिए एक, आईओएस मशीन के लिए अलग, या एक ही लिखेगी और सब में चलना चाहिए? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए। व्हाट यू थिंक? या तीन कोड लिखेगी तीन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? व्हाट यू थिंक? एग्जैक्टली, ओनली वन, राइट? तो Anupriya write a code in Windows that is platform operating system. So platform का मतलब है operating system, याद रखना, on Windows platform, and that can be run on any other platform, either it's Linux, either it's Mac OS, okay, iOS जिसको बोलते हो आप। तो that is called a platform independent. Now Java is a secure, बिल्कुल Java बहुत secure है, क्योंकि बाइट कोड जो सिर्फ ह्यूमन को नहीं समझता, जो सिर्फ मशीन को समझता है, तो जावा अपना कोड हमेशा बाइट कोड में डॉट क्लास फाइल बनाता है। मेक सेंस? और बाइट कोड ओनली मशीन अंडरस्टैंड कर सकता है, इसीलिए उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसीलिए दैट इज सिक्योर। जावा इज फास्ट, हाँ बिल्कुल फास्ट है, रीजन है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। जावा का जो कंपाइलेशन है वो जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन है, एक फाइल पूरा लेता है, उसको कंपाइल करता है और उसको कैशे में रखता है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम उसको उस फाइल से कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, इंस्टेंस चाहिए, वेरिएबल चाहिए, वो डायरेक्टली कैशे से लेता है, फिर से वो फाइल लाके फिर से प्रोसेस करके कंपाइल नहीं करता है, बिकॉज वो कंपाइल होके अवेलेबल है, तो इसीलिए वो वहीं से लेता है। तो वो मल्टीपल टाइम कंपाइलेशन का टाइम बचा देता है, इसीलिए जावा इज फास्ट। मेक सेंस? देखो ये कोई पूछेगा नहीं आपको, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं बिकॉज हम लोग जावा से चालू करने वाले हैं। ओके, ये देखो अभी मैंने जो बोला प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्या मतलब है? देखो इसने बोला है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स राइटिंग अ जावा कोड इन वन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज एंड एग्जीक्यूटिंग ऑन अनदर। ओके, देन वोरा, उसका दूसरा नाम है राइट वंस एंड रन एनीवेयर। जैसे मैंने बोला था अनुप्रिया मल्टीपल टाइम लिखेगी, तो आंसर इज नो, अनुप्रिया वंस, राइट वंस एंड रन एनीवेयर। ओके, और जावा को सिक्योर कौन बनाता है? जावा को सिक्योर बनाता है बाइट कोड, क्योंकि कौन समझता है बाइट कोड? ओनली मशीन लैंग्वेज, दिस मशीन, ओनली योर मशीन कैन अंडरस्टैंड योर बाइट कोड। मैं बाइट कोड भी दिखाऊंगा आपको कैसे बनेगा, डोंट वरी, आज आपको सारा मैं दिखाऊंगा एक बार बाइट कोड भी कैसे बनता है। दिस इज हाउ और जावा बिकम्स सिक्योर। ये वर्ड सुने जेवीएम, जेआरई, जेडी के? सो जेवीएम इज वर्चुअल मशीन विच इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट। वर्चुअल का मतलब ही वही है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहना, उसको वर्चुअल बोलते हैं। ओके,
जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं उसको हम वर्चुअल बोलते हैं। मेक सेंस? जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं वो हो गया वर्चुअल। चलो, नाउ जेआरई क्या है? जेआरई वर्चुअल नहीं है, वो इन्वायरमेंट, जस्ट इन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन देखो जेआरई के अंदर क्या आया, जेआरई के अंदर बाय डिफॉल्ट जेवीएम आ गया, और एडिशनल उसके साथ क्या है? तो उसके साथ है लाइब्रेरीज। तो जेआरई के पास और लाइब्रेरीज है, जेआरई के पास एडिशनल लाइब्रेरीज है, जेआरई के पास एडिशनल लाइब्रेरीज है। इज इट? जेआरई के पास एडिशनल लाइब्रेरीज भी है। तो लाइब्रेरीज मतलब क्या? तो जेवीएम क्या है? जेवीएम एक वर्चुअल मशीन है, लेकिन जेवीएम वर्चुअल मशीन होने के बाद भी वो बोलता है मुझे आपको तो हेल्प करना है, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उसने वो रिक्वायरमेंट बता दी जेआरई को, और जेआरई ने वो रिक्वायरमेंट कर दी इंप्लीमेंट ये लाइब्रेरी में। ओके, जेआरई ने ये रिक्वायरमेंट सारी इंप्लीमेंट कर दी इन दिस लाइब्रेरी। इसीलिए जेआरई और जेवीएम वर्क्स टुगेदर। तो जेवीएम इज इनबिल्ट ऑफ जेआरई, क्योंकि वो वर्चुअल है, उसको कोई तो जगह चाहिए कहीं पे अवेलेबल होने के लिए, तो उसने यहाँ पे किया है। एंड थर्ड एरिया इज जेडीके। तो देखो जेडीके के अंदर ही जेआरई है, कैन यू सी? पूरा जेआरई जेडीके के अंदर आ गया, और उसके साथ आ गया आपको डेवलपमेंट टूल्स, उसके साथ आ गया आपको डेवलपमेंट टूल्स। डेवलपमेंट टूल्स मतलब एज अ डेवलपर आपको कोड लिखना है, आपको डेवलप करना है, तो आपको कंपाइलर चाहिए, राइट, डिबगर चाहिए, आपको जावा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। लाइब्रेरीज में कंप्लीट जेवीएम का इंप्लीमेंटेशन है। मैं उसको आपको डे बाय डे समझा दूंगा समीर, ओके? धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, जस्ट थोड़ा टाइम दो। तो डेवलपमेंट टूल है यहाँ पे जावा डॉक्स, ये एडिशनल है। तो देखो जेवीएम, जेवीएम आता है बाय डिफॉल्ट जेआरई में, और पूरा जेआरई आता है बाय डिफॉल्ट जेडीके में। तो यहाँ पे यही इसको एक्सप्लेन किया है। इट्स अ वर्चुअल मशीन, एब्स्ट्रैक्ट मशीन, मतलब फिजिकली प्रेजेंट ना होना उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट या वर्चुअल। अभी जेवीएम के कुछ टास्क है। लेट से आपने एक प्रिंट का एक प्रोग्राम लिखा, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए वो जाएगा कहाँ? पहले उसको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए जेवीएम हेल्प करता है। जेवीएम के कुछ मेन टास्क है। क्या क्या टास्क है? जेवीएम लोड्स दैट कोड, वेरीफाई दैट कोड। वेरीफाई का मतलब कि वो कोड करेक्ट है या नहीं है, या उसमें कुछ गलती है, वो वेरीफाई करता है। फिर एग्जीक्यूट करके देखता है, उसमें कोई एरर है, कोई वार्निंग है, तो वो एग्जीक्यूट करके देखता है खुद, और फिर बोलता है ये लो रन टाइम इन्वायरमेंट, अभी आप रन कर सकते हो, मुझे ये कोड में कोई भी एरर वार्निंग नहीं दिखा, आप उसको रन कर सकते हो। मेक सेंस? ये जेवीएम के 4 मेन टास्क है। तो अभी समीर जब मैंने बोला जेवीएम तो वर्चुअल है, तो जेवीएम ये टास्क करेगा कैसे? उसको तो ये इंप्लीमेंटेशन करके चाहिए, यस और नो? उसको तो ये इंप्लीमेंटेशन करके चाहिए, तभी जाके तो वो टास्क कर पाएगा। तो इसीलिए वो गया जेआरई के पास, और उसने जेआरई को बोला जेआरई मुझे ये 4 टास्क करने हैं, कैन यू हेल्प मी टू डू माई इंप्लीमेंटेशन इन योर लाइब्रेरी? आपके लाइब्रेरी में ये सारा इंप्लीमेंटेशन करके दोगे मुझे, सो दैट आई कैन यूज इट, सो दैट आई कैन यूज इट। मेक सेंस? मेक सेंस? तो इस वे से जेआरई की लाइब्रेरी बनी है, ये इंप्लीमेंटेशन जेवीएम का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए।
ओके, ठीक है। अभी इसने क्या किया, इसने बोल दिया मैंने रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, लेकिन ये कोड रन करके नहीं देगा, ये सिर्फ रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। रन इसलिए नहीं करता क्योंकि ये वर्चुअल है। इसने बोला मैं सिर्फ चेक करके दे दूंगा कोड में कोई वार्निंग एरर है या नहीं है, आप आगे का काम कर लो। और कोड में कोई टैंपरिंग तो नहीं हुआ है, मतलब किसी ने कोड से छेड़छाड़ तो नहीं की है, मैं इतना वैलिडेट करके दे सकता हूँ। तो फिर गया जेआरई के पास। जब उसने इट प्रोवाइड्स अ रन टाइम इन्वायरमेंट, तो जेआरई विल हेल्प यू टू ओनली रन द कोड। ये लाइब्रेरीज हेल्प करती है आपको वही कोड रन करने के लिए। देखो इसने बोला है इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम। जेवीएम का इम्प्लीमेंटेशन जेआरई में है और ये फिजिकली प्रेजेंट है। और यही इम्प्लीमेंटेशन जेवीएम यूजेस एट रन टाइम। कहां पे, ये लाइब्रेरीज जो इम्प्लीमेंटेशन किया है जेवीएम को अपनी टास्क करने के लिए, रन टाइम यही यूज करता है। ओके, तो फिर जेडीके क्या करता है? जेडीके बोलता है आप जो करते हो जेआरई तक उतना तो मैं करता हूं, लेकिन एडिशनल आई विल यूज अ डेवलपमेंट टूल्स, जहां पे आप कोड डिबग कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो। और अगर आप डेवलपर हो तो आपको वहां पे जावा डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कोड का डॉक्यूमेंटेशन भी मिल सकता है। क्लियर? क्लियर है एवरीवन? यस। ओके, चलो अभी एकदम हाई लेवल देख लेते हैं यूसेज इन तीनों का, बस वहीं पे खत्म कर देंगे यूसेज के बाद। जेवीएम क्या बोलता है? जेवीएम बोलता है आई विल जस्ट प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट। ये देखो उसने सिर्फ रन करने के लिए इन्वायरमेंट दिया। जेआरई क्या बोलता है? आई विल यूज टू रन द कोड। जेआरई बोलता है आप मुझे यूज कर सकते हो कोड रन करने के लिए। और जेडीके क्या बोलता है? आई विल यूज टू रन द कोड प्लस प्रोग्रामिंग। आप मेरे जेडीके अगर इंस्टॉल करोगे तो आप रन भी कर सकते हो, प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, एज अ ऑटोमेशन टेस्टर बताओ इन तीन में से आपको क्या चाहिए इंस्टॉल करने के लिए? व्हाट थिंग दैट यू नीड टू इंस्टॉल? वेरी गुड अनुप्रिता, प्रणाली, सिद्धि, गुड गुड। You need a JDK. You need a JDK. Exactly. क्यों JDK चाहिए? क्योंकि आपको कोड रन करना है प्लस प्रोग्रामिंग भी करनी है। Yes or no? To run the code and do a programming, you need a JDK. Exactly. You need a JDK on your machine. Make sense, guys, everyone? यहां तक क्लियर है सबको? तो चले अभी हम JDK ले लें हमारे मशीन पे।
चलो फिर, let's go back. Okay, let's go back here, and what we'll do, हम लोग चलते हैं जावा लेने के लिए. So go to Google. Okay, go to Google and type download Java. Go to Google and type download Java. Make sense? Go to Google and type download Java. Now click on the first link, that is oracle.com. ये java.com पे मत जाना, oracle.com की URL पे जाके डाउनलोड जावा पे क्लिक कर दो. जावा डाउनलोड्स. ओके, क्लिक ऑन जावा डाउनलोड. अभी आप जब नीचे आओगे, आपको यहाँ पे जेडीके का वर्जन दिखता है 23, 21. कौन सा वर्जन आपको चाहिए? 23 चाहिए, 21 चाहिए? इट्स अप टू यू. अगर मुझे पूछोगे तो गो विद द लेटेस्ट वन. गो टू जेडीके 23. अगर आपके पास विंडोज मशीन है तो विंडोज, मैक मशीन है तो मैक, और लिनक्स मशीन है तो लिनक्स. तो जैसे मेरे पास विंडोज है, आई गो टू विंडोज एंड डाउनलोड दिस इंस्टॉलर .exe. ओके, डाउनलोड दिस इंस्टॉलर. अभी लेट मी सी, अगर मुझे देखना है मेरे पास इंस्टॉल है या नहीं जावा, तो लेट्स गो एंड सी. तो 23 होगा मेरे पास. ये देखो, आई हैव 21, आई हैव 22, आई हैव 23, आई हैव 17, आई हैव 18. ऑल द वर्जन आई डू हैव. ओके, तो आप मल्टीपल जावा वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हो. ओके, तो यू नीड टू गेट दिस .exe. जैसे .exe लोगे, नेक्स्ट 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 करते हुए आपको इंस्टॉल करना है. सो यू आर एबल टू इंस्टॉल अ JDK, that is Java 23 on your machine. Is it clear? Is it clear? सबको कर लोगे सब लोग इंस्टॉल, और डू यू वांट मी टू शो यू दिस? टेल मी. क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट स्टिल आई शो यू. सी व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस 64 का exe. ये मैंने क्लिक किया exe पे. सी इट इज स्टार्टेड डाउनलोडिंग. सो इट इज स्टार्टेड JDK 23 विंडोज इंस्टॉलर डाउनलोड्स. लेट इट बी. ओके, हो गया. अभी उस पे आप डबल क्लिक कर दो. ओके, उस पे आप डबल क्लिक कर दो. इट विल आस्क यू कैन आई रन. यू कैन से यस. And see, it started installation. It started this installation.
आई सेड नेक्स्ट सी उसने पाथ बोल दिया, मैंने बोला ओके बिल्कुल उसी पाथ पे डालना है, मैंने बोला बिल्कुल उसी पाथ पे डालना है हमको। एंड इट स्टार्टेड इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट स्टेप इज डन। आपका उसने बोल दिया ये देख लो ये जेडीके का रीडर डॉक्यूमेंट है, इफ यू वांट टू रीड दिस ओके आई सेड क्लोज। और अगर आप जाके देखोगे कि जावा इंस्टॉल्ड हुआ या नहीं तो ऑलरेडी आई हैव दैट 23 बट सी 1703 आज अभी हुआ, उसका उसने अपग्रेड कर दिया। कैन यू सी दिस? मेक सेंस एवरीवन? यस, चलो फिर आगे बढ़े। Now you have JDK on your machine. That means now you have Java on your machine. Now what you need guys after Java? What you need after Java? Can you mute yourself, guys? Can you mute? Who is that? No problem. I am mute. Okay, fine, fine. मैंने mute कर दिया। चलो, so now exactly what you said is right. We need Eclipse or any other. We need Eclipse or any other tool और जिसको हम बोल सकते हैं editor to write your Java code. Yes? Make sense? JRE नहीं चाहिए समीर because JDK itself hold a JRE, right or wrong? हमने क्या बोला था? JDK itself hold a JRE. तो फिर JRE सेपरेटली लगेगा क्या हमको? No, because once you install a JDK, you have everything. Once you install a JDK, you have everything. Clear है?
ओके, सो नाउ वी नीड एन एडिटर। एडिटर का मतलब है वेयर यू आर गोइंग टू राइट योर जावा कोड। एडिटर का मतलब है वेयर यू आर गोइंग टू राइट योर जावा कोड। सो every language has their own editor. Every language has their own editor. If you ask, like Java, it has Eclipse, it has NetBeans, it has IntelliJ, or you heard Notepad is also one of the editor. In my earlier days, I was writing a Java code in Notepad in the college. I'm not sure if you guys use this or not, but we were using a Notepad as a Java code writer, that is editor. We were using that. Okay. Now, why we select Eclipse? Again, the same reason. 90% of people are using Eclipse to write their Java code. That's why we are going on the majority. We were going on the majority one. Fine. So how do we get that Eclipse? So again, we'll go here and we'll type download Eclipse. हमने लिख दिया download Eclipse. You will find eclipse.org as a first site. I'm just clicking on that. We can find here the latest version of Eclipse. If you can find the first page, download packages is there. Download packages. Click on that, on download packages, and you will find multiple version of Eclipse here. Look at here. ये देखो 2024 12, 2024 9, 2024 6. So every quarter they release a new version. Like this quarter they release a new version, that is 2503. If you can see 2503, they gave the new installer 2503. So chalo, what we are, so out of that 2503 we have Eclipse ID for Java developer. Though we are just a normal Java developer, Java automation tester, we need this ID for only Java development. If you have Windows machine, you can get this. If you have Mac machine, you can get this. If you have Linux machine, you can get this. So I have Windows machine, so I click on this x8664. Look at here. I click on that and it started downloading Eclipse version. This zip file, okay? It started downloading. Let's click, okay? And it started downloading now. See, Eclipse Java version 2503 is the version that I'm getting it right now. 2503. So let it download. It's a zip folder. जब वो zip आएगा फिर उसको हमको unzip करके उसमें से Eclipse ओपन करना पड़ेगा. तो I'll show you that also how. Guys, one thing, is that speed is okay या मुझे और थोड़ा फास्ट जाना है, स्लो जाना है? इट्स अप टू यू. आप लोग मुझे बताओ. स्पीड ठीक है? ओके है? ओके, ठीक है. ओके है अमान ऑल्सो. ओके, गुड. अदर्स? चलो देखो ये डाउनलोड हो गया जिप फोल्डर. Okay, the zip folder is download. It's done. Okay, so we can go there in the folder structure itself. Okay, आप यहाँ से चले जाओ फोल्डर पे डायरेक्टली. This is the folder that we just downloaded. मैं काम करता हूँ इसको कंट्रोल एक्स करके हमारे सेलेनियम फोल्डर में लाके रख देता हूँ. ये यहाँ पे देखो, जैसे मेरे पास मल्टीपल वर्जन होते हैं. ये देखो 2409 भी है, 2412 भी है. सेम हमारा भी वर्जन यहाँ पे लाके रख देते हैं हम लोग. लेट इट. ओके, आ गया.
ये देखो 2503, इस पे राइट क्लिक किया मैंने एंड आई सेड एक्सट्रैक्ट अनजिप। ओके, आई सेड एक्सट्रैक्ट ऑल टू 25, यही फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर दो। ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। ओके, सो आई हैव अनजिप दैट जिप फाइल। आप डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो, उसके बाद मत रखो, इट्स अप टू अस, लेट इट हैपेंस। अनजिप बहुत स्लो हो रहा है। Let it happen, guys. I don't know why it's too slow. हो सकता है मुझे लैपटॉप पे स्टार्ट करना पड़े। Let it happens. और मीनवाइल आप लोग भी करो, आप लोग भी डाउनलोड करो इक्लिप्स भी और जावा जेडीके भी। तो जो हमारा प्री रिक्विजिट है, वी शुड हैव बोथ ऑन आवर मशीन। वन दैट इज जेडीके, nothing but a Java version. Along with that, you will get your JRE and you will get your JVM. So जब आप JDK इंस्टॉल कर दोगे, आपको JRE और JVM दोनों मिल जाएगा। ओके, जब हम लोग अभी ये Eclipse अनजिप करेंगे, we'll find the second version is your Eclipse. We'll find everything, will get it within this Eclipse का version. Everything. So एक मिनट, कि कहाँ तक पहुंचा? 95. ओके, चलो हो जाएगा 2 मिनट में कंप्लीट। ओके 97। इज दैट सबको इतना टाइम लग रहा है अनजिप करने में, या मुझे ही लग रहा है? मेरा ही मशीन मैंने बहुत ज्यादा यूज कर लिया। Okay, done. See, so we have this folder 25. Inside that you will find Eclipse folder. Inside that you will see eclipse.exe. उसके अंदर आपको दिखेगा eclipse.exe. Can you all see this? जब अनजिप हो जाएगा फोल्डर के अंदर जाना, जिप फोल्डर के अंदर नहीं, नॉर्मल फोल्डर के अंदर, और double click on this eclipse.exe. See, it started Eclipse ID for 2503. It started Eclipse for 2503. Now, यहाँ पे देखो क्या आया लिख के, select your workspace. Select your directory as a workspace. Workspace. What do you mean by workspace? क्या मीनिंग है workspace का? कोई बता सकता है? What do you mean by workspace? So workspace जहां पे where we work. Yes or no? Yes or no? Exactly. Exactly, Samir. So workspace का मतलब simple language, okay? Simple language. Workspace का मतलब है where we are going to work. Where we are going to work. तो हम क्या करते हैं, हम ये सेलेनियम के अंदर एक वर्कस्पेस, एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर बना देते हैं। मैंने बना दिया मार्च 2025। कैन यू सी? मैंने बना दिया मार्च 2025।
What I'll do, I will select that as a workspace. आज से मेरा जितना भी कोड मैं करूंगा मैं बनाऊंगा और मैं करूंगा ये मार्च 2025 में। सो मैंने कर दिया ब्राउज, मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया आपका फोल्डर सेलेनियम और यहां से सिलेक्ट कर लिया मैंने मार्च 2025 जो हमने बनाया था और कर दिया सिलेक्ट। लुक एट हियर योर वर्कस्पेस गेट चेंज्ड। सी सेलेनियम मार्च 2025। मेक सेंस गाइस? So this is a workspace where we are going to work for next 4.5 months or 5 months. ये क्लियर सबको? Yes. Okay. So simply click on launch. So Eclipse is going to launch for this workspace, which is March 2025. Eclipse is going to launch. Let it launch and then we'll see its widget also. Widget का मतलब है अलग अलग उसके पार्टीशन ऑफ इक्लिप्स। ओके, जैसे ये आया सामने, ये देखो इक्लिप्स इज लॉन्च। ये वेलकम स्क्रीन है, इसकी हमको जरूरत ही नहीं। ये है वेलकम स्क्रीन, इसकी हमको जरूरत ही नहीं है। मैंने बोल दिया क्लोज कर दो। ओ, मैंने कर दिया क्लोज। वंस यू क्लोज, सी दिस इज योर एक्चुअल इक्लिप्स का विंडो, अ होम विंडो। लेफ्ट साइड ये जो लेफ्ट विजेट है इसको बोलते हैं पैकेज एक्सप्लोरर या प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। पैकेज या प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर मतलब दिस विल होल्ड द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हियर। आपने 100 प्रोजेक्ट बनाए तो 100 प्रोजेक्ट विद इन अ सेम वर्क स्पेस, सेम डायरेक्टरी आपके रहेंगे। कौन सी डायरेक्टरी बनाई आपने? मार्च 2025। उसके अंदर 100 प्रोजेक्ट 100 फोल्डर में आपके यहाँ पे बनेंगे और दिस विल शो योर प्रोजेक्ट इन अ ट्री व्यू। ट्री व्यू समझता है सबको? एक ब्रांच, उसके अंदर 4 ब्रांच, उस हर एक 4 के अंदर 2 2 3 3 ब्रांच। So that is a tree. Yes. So here we will see a tree view. Right hand side widget says task list। मतलब अगर मुझे अभी एक टास्क करना है डेटाबेस कनेक्टिविटी, लेकिन उसके लिए मेरे पास डेटाबेस ही रेडी नहीं है, तो मैं यहाँ पे टास्क ऐड करके लिख के रख सकता हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस कि मुझे एक डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड करना है आफ्टर क्रिएटिंग SQL डेटाबेस, जो भी है। So here we can maintain a task. Below the bottom widget here, this is your problem, errors, Javadoc, declaration और console output। ये आपको सारी चीजें दिखाता है। जो आप कोड रन करोगे उसका कंसोल आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे दिखना चाहिए। कुछ डिक्लेयर किया, यहाँ पे दिखना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन देखना है, यहाँ पे दिखना चाहिए। कुछ एरर है, कंपाइल टाइम एरर है, रन टाइम एरर है, यहाँ पे दिखना चाहिए। दिस इज दैट एरर विजेट्स और बॉटम विजेट। एंड द सेंटर विजेट, इसको मैं बोलता हूं एक्सपर्ट व्यू। हमेशा इसका नाम मैंने रखा है एक्सपर्ट व्यू। व्हाई? दिस इज अ विजेट वेयर आई वांट ईच वन ऑफ यू टू बी एन एक्सपर्ट। क्योंकि जो भी आप कोड लिखोगे वो ये व्यू में लिखोगे, सेंटर में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? यहां तक मेक सेंस एवरीवन? समीर, सिद्धि, ओके। अदर्स? अदर्स? बाकी लोगों को नहीं समझा? फिर से बोलना है। यू कैन आस्क मी मल्टीपल टाइम। ओके ओके अमान, यू कैन आस्क मी मल्टीपल टाइम। अच्छा, अनुप्रीता को फिर से समझा या मुझे फिर से बताना है? फिर से बताओ व्हाट इट इज। यू कैन आस्क मी मल्टीपल टाइम। ओके, आई विल आंसर। चेतन, भूषण, सोनाली, समीक्षा, प्रणाली,
मेक सेंस? यहां तक क्लियर? ओके, गुड, चलो, गुड, ठीक है। सो नाउ आवर फर्स्ट जॉब to create a new Java project. Now our first job to create a new Java project. मेरा पहला जॉब है जावा प्रोजेक्ट बनाना. You can create directly from here also create Java project, बट मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ क्योंकि ये आज आ रहा है, नेक्स्ट टाइम नहीं दिखेगा ये, इसलिए. So go to file, new. Can you see the first option Java project? File, new Java project. Click on the first option Java project. Now always आपको प्रोजेक्ट नेम देना है यहाँ पे, ये यहाँ पे. Always Java project or project name starts with capital, okay, and followed by a camel case. Camel case का मतलब होता है पहला लेटर ऑफ एनी वर्ड इज कैपिटल, जैसे सेशन का S कैपिटल, वन का O कैपिटल. कैन यू सी दिस? स्टार्ट्स विथ कैपिटल फॉलोड बाय कैमल केस. अभी कोई बोलता है कैन आई स्टार्ट विद नंबर, सो देखो वो बोलता है एरर, इनवैलिड, नंबर से चालू मत करो. कैन आई स्टार्ट विद स्पेशल कैरेक्टर, वो बोलता है नहीं, चालू मत करो. कैन आई स्टार्ट विद स्पेस, यू कैन, बट दैट इज नॉट द राइट वे. कैन आई स्टार्ट विद स्मॉल, you can, but that is not a coding guideline. So that's why I'm showing you you can start with a capital. Once you start with capital, click on finish. ये देखो यहाँ पे finish बटन है. जैसे finish करोगे आपका एक प्रोजेक्ट बन गया. कैन यू सी ऑन पैकेज एक्सप्लोरर? मैंने बोला था आपको ट्री व्यू, तो ये देखो इस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर देखो आपको सब दिख रहा है, ये ट्री जैसा. कैन यू सी? और बाय डिफॉल्ट आपका कोड रन करने के लिए उसने JRE यहाँ पे ले ली. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्योंकि टू रन द कोड यू नीड अ JRE. यस और नो? तो एक प्रोजेक्ट बन गया. देखो इक्लिप्स इज अ स्मार्ट आईडी. जैसे नोटपैड में आपको कोई एरर आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, इक्लिप्स में इमीडिएटली दिख जाएगा. इक्लिप्स को जितना जरूरत है उतना ही लेके आएगा, बाकी का नहीं. इज इट क्लियर? सो आई हैव क्रिएटेड अ न्यू जावा प्रोजेक्ट, वेरी बेसिक जावा प्रोजेक्ट. यहां तक क्लियर सबको गाइस? सो जावा प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग. फाइल, न्यू जावा प्रोजेक्ट, एंड देन प्रोजेक्ट का नेम. बाय डिफॉल्ट उसने ये सब कुछ फोल्डर इनसाइड बना के लेके आया. तो अगर आप देखोगे तो देखो मार्च 2025 के अंदर एक नया फोल्डर बन गया जावा सेशन 1, जो अभी हमने बनाया प्रोजेक्ट. और उसके अंदर बन गई ये 5 फोल्डर, सेटिंग्स, बिन, SRC, क्लास पाथ एंड प्रोजेक्ट. तो मैंने अभी बोला था इक्लिप्स इज अ स्मार्ट आईडी. इक्लिप्स क्या बोलता है? मुझे कोड लिखने के लिए, सोर्स कोड लिखने के लिए मुझे इतने सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ SRC चाहिए. तो देखो उसने 5 में से सिर्फ SRC यहाँ पे लेके आ गया. कैन यू सी दिस? ये देखो सिर्फ SRC यहाँ पे लेके आ गया. मेक सेंस? यहां तक क्लियर एवरीवन? परफेक्ट, परफेक्ट. तो अभी SRC के अंदर ये एक मॉडल इन्फो डॉट जावा बना है. मैं इसको सिर्फ डिलीट कर देता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं है मुझे. Now see what I'm going to do. Right click on your SRC folder. Right click on your SRC. New. Can you see a package? Fourth option. Can you see fourth option? Package. New package. Yes? What do you think? What is package, guys? Package का क्या मतलब है?
आप लोगों का कभी अमेजन का पैकेज आता है, फ्लिपकार्ट का पैकेज आता है, स्विगी, जोमेटो आता है? पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स टुगेदर. यस, यस. सो सेम वे जावा में पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ classes, Java classes. Package is a collection of Java classes. So let's click on package. Now coding guideline क्या बोलता है? Coding guideline बोलता है package name always starts with small, followed by camel case. ये देखो, प्रोजेक्ट नेम कैपिटल, पैकेज नेम स्टार्ट्स विद स्मॉल फॉलोड बाय कैमल केस. तो क्या मैं ये नंबर से चालू कर सकता हूँ? तो बोलता है नहीं, मत करो इधर. क्या स्पेशल कैरेक्टर बोलता है मत करो. ठीक है, तो इसीलिए स्मॉल से चालू किया, फॉलोड बाय अ कैमल केस, एंड यू जस्ट क्लिक ऑन फिनिश. तो कैन यू सी आपका एक यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर बन रहा है. ये देखो, ट्री, ये पेरेंट, इसका चाइल्ड ये और इसका चाइल्ड ये. चलो फोल्डर में भी देख लेते हैं. तो देखो फोल्डर में ये पेरेंट, इसका चाइल्ड सोर्स, और इसके अंदर आपको दिखेगा पैकेज जो अभी आपने बनाया. लेकिन इक्लिप्स इज वेरी स्मार्ट. मैंने बोला था इक्लिप्स इज सिक्योर, सॉरी जावा इज सिक्योर. कैसे? तो इक्लिप्स देखो क्या करता है. जैसे उसने एसआरसी में फोल्डर बनाया, वैसे ही उसने बाइनरी कोड लिखने के लिए बिन में भी एक फोल्डर बनाया. ये देखो, जावा सेशन 1 पैकेज. जैसे एसआरसी में हमने फोल्डर बनाया, वो सेम उसने क्लोन किया. यही क्लोन उसने वहां पे भी किया, बिन में. एसआरसी का क्लोन बिन में हुआ. मेक सेंस? मेक सेंस यहां तक? फिर आपको समझेगा सिक्योर कैसे बन रहा है. मैंने आपको बोला था मैं बाइट कोड दिखाऊंगा आपको, सिक्योर कैसे बनता है वो दिखाऊंगा. मेक सेंस टिल दिस पॉइंट गाइस? यस, ओके. चलो, नाउ आई एम गोइंग बैक हियर. और मैंने बोला पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, जावा क्लासेस. तो देखो मैं क्या किया, राइट क्लिक ऑन पैकेज, न्यू, एंड कैन यू सी क्लास हियर? कैन यू सी क्लास हियर? फिफ्थ ऑप्शन, ये देखो, जावा क्लास. कैन यू सी फिफ्थ ऑप्शन? तो मैंने क्लिक कर दिया क्लास पे. नाउ व्हाट इज क्लास? सो अभी के लिए मैं एक सिंपल डेफिनेशन देता हूँ. क्लास हम बहुत डिटेल में देखने वाले, डोंट वरी. क्लास के डेफिनेशंस बहुत सारे हैं, हम डिटेल में उसको और देखेंगे उप्स कॉन्सेप्ट में या धीरे धीरे. अभी के लिए क्लास इज जस्ट अ टेम्पलेट. क्लास इज जस्ट अ टेम्पलेट टू राइट योर जावा कोड. खत्म. मेक सेंस? मेक सेंस? अभी के लिए सिर्फ हम इतना बोलते हैं कि ये मेरे लिए अभी सिर्फ टेम्पलेट है जहां पे मुझे कोड लिखना है. खत्म. ये क्लियर सबको? ये क्लियर सबको? यस. तो चलो, ये सिर्फ टेम्पलेट है तो टेम्पलेट का नाम देते हैं. फिर से, क्लास नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल. ओके, फॉलोड बाय कैमल केस. देखो मैंने क्या बोला, जावा सेशन 1 क्लास, और जावा क्लास 1 करते हैं. जावा का पहला क्लास. तो स्टार्ट विथ कैपिटल फॉलोड बाय कैमल केस. फिर से नंबर और स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं करता है. बाकी कुछ नहीं करेंगे अभी के लिए हम लोग. और अभी जेवीएम क्या बोलता है, मेरे 3 टास्क हैं. मुझे वेरीफाई करना है कोड, राइट. पहले लोड करना है, वेरीफाई करना है, मेरे एंड पे एग्जीक्यूट करके देखना है, और फिर मुझे रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कोड रन करने के लिए. तो जब इसको ये 3 टास्क करने हैं, लोड, वेरीफाई और एग्जीक्यूट, डू यू थिंक उसको भी कुछ एंट्री पॉइंट लगेगा? उसको पता कैसे चलेगा कौन से क्लास से कहां से एग्जीक्यूट करना है? यस और नो? यस और नो?
तो मतलब अगर आपने घर बांध दिया तो घर में जाने के लिए दरवाजा बनाओगे कि नहीं? फिर अदरवाइज आप एंट्री कैसे करोगे अगर चारों तरफ से दीवार बना दोगे तो? मेक सेंस? मेक सेंस? सो दिस इज अ सिक्योर क्लास, यस और नो? सो वी नीड एन एंट्री पॉइंट। कहां से मैं एंट्री करूं? तो वो एंट्री पॉइंट है ये मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये चेक बॉक्स को चेक करो, ये वाला पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, बस बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्लास नेम देना है और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चेक करना है और क्लिक कर दो फिनिश पे। वंस यू फिनिश, देखो आपका ट्री स्ट्रक्चर बन गया। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर सोर्स फोल्डर, सोर्स फोल्डर के अंदर पैकेज, पैकेज के अंदर क्लास। ये थोड़ा सा मैं इसका ये बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट, तो आपको दिखेगा। एक सेकंड देना मुझे। एक सेकंड गाइस। ओके, कैन यू सी नाउ? एवरीवन कैन यू सी दिस? कोड दिख रहा है अभी अच्छे से? बड़ा हो गया? ये इससे बड़ा चाहिए और? मेक सेंस? इतना इतना ठीक है एवरीवन? अरे इधर आप लोग मुझे सुन नहीं पा रहे हो, बाकी लोग सुन पा रहे हो? ठीक है, चलो। तो मैंने इतना कोड कर दिया, एटलीस्ट आप देख पाओगे साइज। सो देखो, अभी चलो फोल्डर में चलते हैं। ये देखो, मैंने सोर्स फोल्डर के अंदर पैकेज बनाया था ये वाला, और इस पैकेज के अंदर मैंने बनाया था ये जावा क्लास 1। इस फाइल का एक्सटेंशन देखो क्या है, डॉट जावा। ये देखो टाइप में भी लिखा है डॉट जावा फाइल। कैन यू सी दिस? मैं इसको ओपन करता हूँ, राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड। इसे नोटपैड में ओपन करता हूं मैं। इज दैट एवरीवन कैन रीड दिस? ये देखो, ये सब लोग रीड कर सकते हैं, पैकेज, पब्लिक, क्लास, सब लोग रीड कर सकते हैं, राइट? एग्रीड? तो मैंने क्या बोला था, सेम स्ट्रक्चर वो बिन में भी बना रहा है। ये देखो, बिन के अंदर फोल्डर पैकेज नेम से, और यहाँ पे देखो टाइप, मतलब एक्सटेंशन क्या है फाइल का। वहां पे डॉट जावा था, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डॉट क्लास फाइल। नाउ चेतन हमारे सबके लिए ये रीड करेंगे। ये क्या लिखा है चेतन? ये क्या लिखा है ऐसा? ये क्वेश्चन मार्क क्या होते हैं? कैन यू सी अ बाइट कोड गाइस? Yes, it कैन यू is सी? by या, दिस इज अ बाइट कोड। दिस इज अ बाइट कोड। कैन यू ऑल सी दिस? Which machine language or only machine can understand this? Is that clear? Why Java is secure? मैंने बोला था आपको दिखाऊंगा मैं धीरे धीरे। Is it clear guys? यहाँ तक make sense? So no one can read, as a human we cannot. Okay, मुझे ये समझ में नहीं आएगा definitely. Okay, this is a machine language. ओके, कितना स्पेस दिया है उसके बाद उसका भी कुछ तो वैल्यू रहता है। ये जो स्पेस दिया है ना, उसका भी वो हमको नहीं पता रहेगा इतना। सो दिस इज हाउ योर Eclipse is a smart IDE which generates automatically your class file, which is your compilation, auto compilation. Or this is a bytecode, which is a secure, which is a secure. यहाँ तक any doubt, anyone, you can ask me. Any doubt you guys are having, you can ask me on the chat. I'm waiting for 2 to 3 minutes. Any doubt, anyone? किसी को भी, you can ask me. Don't hesitate to ask.
प्लीज गाइस क्वेश्चन पूछ सकते हो। नो डाउट। ठीक है, ठीक है, नो डाउट। लेट्स मूव, लेट्स मूव। So now what I'm going to show you is this is your first program. ओके हम लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी नोट बना देता हूँ। ओके सो दैट यू विल गेट दिस कोड। तो आपके पास सारा नोट रहेगा। जैसे मैंने बोला है, सॉरी, ये क्या होगा? डबल, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? 2/, what is this? 2/ is command, comment. Okay, it's a comment. Comment मतलब जो कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। comment which is never execute. This is a commented code. comment का मतलब है कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इसमें 10 लाइन का कमेंट रहेगा और एक ही लाइन का नॉन कमेंटेड कोड रहेगा तो सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट होगा, बाकी का 10 लाइन नहीं। क्योंकि कमेंट ओनली फॉर गिविंग अ कोड अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली ये कोड क्या करेगा, कैसे करेगा, जैसे मुझे अभी कमेंट देना है यहाँ पे। ओके यही प्रोग्राम में लिए तो मैं यहाँ पे कमेंट दे सकता हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट जावा क्लास टू प्रिंट। खत्म, मैंने एक कमेंट दिया। और अगर मल्टी लाइन कमेंट देना है एक से ज्यादा तो मुझे क्या करना है? एक /, उसके बाद स्टार और एंटर। एक /, ये अच्छा ऊपर आ जाएगा, वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या करना है आपको? एक /, स्टार और एंटर। ये हो गया आपका मल्टी लाइन कमेंट। ये हो गया आपका मल्टी लाइन कमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। देखो अभी मैं आपका पूरा कोड में आपके कमेंट दे देता हूँ। सिंगल लाइन कमेंट इज 2/, मल्टी लाइन कमेंट इज 1/, स्टार एंड प्लस एंटर। तो आपका मल्टी लाइन कमेंट आ गया। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? देखो अभी मैं मल्टी लाइन लिखते जा रहा हूं उसमें जितना भी, लेकिन वो सारा कमेंटेड है। अब ये सबको जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको? ऑरेंज ऑरेंज कीवर्ड्स दिख रहे हैं? यस। सो ऑरेंज वर्ड्स, orange words, what it is? It is a reserved keyword in Java. इसको बोलते हैं रिजर्व, इसको बोलते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड इन जावा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड इन जावा। ओके
ऑरेंज वर्ड्स को बोलते हैं रिजर्व कीवर्ड इन जावा। मैंने अभी मैक्सिमाइज कर दिया। ये जो ऊपर लिखा है जावा क्लास 1, इस पे डबल क्लिक करोगे तो देखो मिनिमाइज, इसी पे यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो मैक्सिमाइज हो जाता है। ओके, सो दीज आर माय रिजर्व कीवर्ड। मतलब public is a reserved keyword, static is a reserved keyword, void is a reserved keyword in Java. ओके, चलो फिर ये बताओ ये सेमीकोलन क्या है? व्हाट इज सेमीकोलन? व्हाट इज सेमीकोलन? तो इसको बोलते हैं एंड ऑफ स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं एंड ऑफ स्टेटमेंट। देखो ये स्टेटमेंट यहीं पे खत्म हुआ। अभी हम देखने वाले हैं बहुत सारा। ओके, अभी जब हमने कोड लिखना शुरू कर दिया, मैंने बोला था फ्रॉम द डे वन वी आर गोइंग टू राइट ओनली कोड। हमको कोई थियोरेटिकल चीज पे फोकस नहीं करना है, प्रैक्टिकल, वेयर यू लर्न अ लॉट ऑफ किक्स एंड हैक्स फ्रॉम जावा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एंड ऑफ स्टेटमेंट। सेमीकोलन को मतलब यहाँ पे दे देता हूँ ऐसे भी। ओके, दिस इज एंड ऑफ स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज दिस कर्ली ब्रैकेट? व्हाट इज दिस ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट says? What is this opening curly bracket says? इसको बोलते हैं स्टार्ट ऑफ स्कोप। इसको बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे फिर? एंडिंग करली ब्रैकेट को। तो देखो जैसे मेन मेथड है, तो ये देखो मेन का स्कोप यहां से चालू, ये देखो इसने हाईलाइट कर दिया है, इसका स्कोप यहां पे खत्म हुआ मेन का। कैन यू सी? जैसे क्लास है तो क्लास का स्कोप यहां से चालू, देखो क्लास का कहां पे खत्म हुआ, लाइन नंबर 17 पे देखो उसने हाईलाइट किया। तो क्लास का स्कोप चालू यहां से होता है, एंड यहां पे हुआ। मेन मेथड फंक्शन का चालू हुआ एंट्री पॉइंट का यहां से, खत्म हुआ लाइन नंबर 15 पे। मेक सेंस? मेक सेंस? सबको क्लियर है? यस। तो हमने कुछ और भी बोला था, प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम क्या बोला था? स्टार्ट्स विथ कैपिटल फॉलोड बाय कैमल केस। पैकेज नेम स्टार्ट्स विथ स्मॉल फॉलोड बाय कैमल केस। और सेम एज प्रोजेक्ट नेम। क्लास नेम क्या था? सेम एज प्रोजेक्ट, स्टार्ट्स विथ कैपिटल followed by make sense? ये हमारे नोट थे, यहां तक क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? ये क्लियर सबको? यस, यस, परफेक्ट, परफेक्ट। So now what we'll do, we'll just stop it here today. In the next session we will just print something and then we'll see some of the interview question. अभी हमारा जो पैटर्न है वो है, जो भी टॉपिक हम लेते हैं उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस हम लोग वहीं पे सॉल्व करते हैं। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस तरीके से उसको आंसर देना है, इन दैट वे। ओके, मेक सेंस? मेक सेंस एवरीवन? Perfect. So we can stop it here today, guys. Thank you so much, everyone, for joining. I will request each one of you to do let me know if the speed is okay. अगर स्पीड थोड़ी कम करनी है तो I will do. अगर बढ़ानी है तो भी I will do.
इट्स अप टू यू, बट मेरा सजेशन है यू कैन गो विद द स्लो स्पीड। इनिशियल आप समझ लो कॉन्सेप्ट बेसिक, आपको इमीडिएटली जावा कैच होना शुरू होगा। ओके, बिकॉज I did my careers and start with the same way. So which what I learn, I want to teach you. Does that make sense, everyone? Speed is okay. Very good, Bhushan, Anuprita. Others, is that speed is okay? Siddhi, okay. My daughter name is Riddhi. Okay, very good. Siddhi is also saying okay. Aman is also saying. Samiksha is also saying okay. सोनाली, चेतन ऑल्सो। गुड, गुड गाइस। सो हम लोग यही स्पीड से फिर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सेशन से पहले दो चीजें आपको करनी है, जेडीके इंस्टॉल्ड, इक्लिप्स इंस्टॉल्ड, और आपको बेसिक प्रोजेक्ट बना के उसमें आपको एक पैकेज बना के क्लास बना के देखना है। ओके, believe me, you will enjoy this java a lot. Okay, and you will find this java is too easy जब मैं आपको अभी और कुछ धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बताना शुरू करूंगा जावा के। ठीक है, चलो then guys, have a good day and we'll meet again in the next session. Till that point, take care of yourself and your family. Have a good day guys. Bye. Thanks guys. Bye.